Good morning, students. My name is Pankaj Rao, your mathematics teacher. Today, we will start a new chapter, that is coordinate geometry. In the previous class, we have discussed about the linear equation about with the two variables. बेटा पहले अपन ने linear equation के बारे में डिस्कस किया, जिस पे अपन ने linear equation सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है, और x और y की वैल्यू निकाली थी. आज जो अपना चैप्टर जो देगा दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्या दे रखा बेटा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स. क्या दे रखी है अपनी मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इन विच वी विल टेक इन पॉइंट्स. If you will take 2, 3, then 2, 3, that is the point. 2, 3 means that is x is 2 is that is the x variable and 3 is that is the y variable. यानी कि when we will take both the value of x and y, then it will consider as coordinate. यानी coordinate का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें अपन x और y की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, वो अपने किस में आएगा बेटा, अपना कोऑर्डिनेट्स में. किस में आएगा, कोऑर्डिनेट्स में. एंड ज्योमेट्री मींस when we will plot this point on the line, that is known as coordinate geometry. तो coordinate geometry का बेटा मीनिंग क्या हुआ कि in which we will discuss the values of x and y and also plotting the points, that is known as coordinate geometry. Clear? And the second thing, that is the number line. Number line means a number which is considered on the line. यानी कि कोई भी नंबर दे रखा है जो लाइन के ऊपर कंसीडर हो रहा है, that is the number line. Number line means a line is given and the point is given, that is 0, 1, 2, 3, 4. In the right hand side we will take positive value and the left hand side we will take negative value. क्या रहेगी अपनी negative value. This is the number lines. Number lines means the line at which there are the different types of the number will be used. In the right hand side always we will take the positive number and the left hand side we will take the नेगेटिव नंबर. दिस लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल. सेकंड जो नंबर लाइन का जो टाइप जो दे रखा है, दैट इज द वर्टिकल लाइन. क्या दे रखा है बेटा अपना, वर्टिकल. वर्टिकल मींस इफ वी विल टेक ए परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज द वर्टिकल लाइन. In this we will also take the point 0, that is the center point. In this value is negative, -2, -3, -4. The above value, that is 1, 2, 3 and 4. These are lines known as vertical line. क्या रहेगी अपनी वर्टिकल. यानी कहने का मीनिंग बेटा ये हुआ कि the number lines are two types. That is first is horizontal line and second is vertical line. Condition is same. In the left hand side, that is the positive value, right hand side the negative value, and the vertical line, the above values are the positive and the below values are negative. These are the number line. If we will take horizontal line is also known as x axis. यानी कि जो अपनी horizontal lines दे रखी है उसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, horizontal line also known as x axis. इसको अपन क्या कहेंगे, x axis कहेंगे. And the vertical line is also known as y axis. क्या कहेंगे अपन, y axis. क्लियर. और x axis का बेटा एक और नाम दे रखा है एब्सिसा. क्या दे रखा है अपना, एब्सिसा. And the y axis is also known as ordinate. क्या रहेगा बेटा अपना, ordinate. क्लियर. यानी कि if a point 2, 3 is given and 5, -4 is given, then abscissa, that means x axis, x value, and ordinates, that is y value will be. ये अगर अपने पास में 2, 3 का अगर कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे अपने पास अगर 2, 3 अगर दे रखा बेटा, तो ये जो वैल्यू रहेगी x, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिसा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एब्सिसा. क्या रहेगा अपना बेटा, अपना एब्सिसा. क्लियर. और अगर अपने पास में 3 दे रखा है तो ये अपना रहेगा y वैल्यू, दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट. क्या रहेगा बेटा अपना, ऑर्डिनेट. यानी अगर कोई भी पॉइंट दे रखा हो, अगर आपको इसमें ऑर्डिनेट निकालना और एब्सिसा निकालना है, तो बेटा अपने जो फर्स्ट वैल्यू x की रहती है उसको अपने एब्सिसा बोलते हैं, और सेकंड वैल्यू जो y की रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, अपना ऑर्डिनेट. सिमिलर अगर मैं कह दूं आपको 5, -4 दे रखा. क्या दे रखा बेटा अपने पास में, 5, -4 दे. अगर आपको एब्सिसा निकालना है तो बेटा हमेशा क्या रहेगा, 5. क्या रहेगा बेटा अपना 5. ये क्या है, एब्सिसा वैल्यू. क्या दे रखी है,
सिसा वैल्यू यानी कि x वैल्यू क्या दे रखी है बेटा अपनी x, और ये जो -4 जो रहेगा दैट इज द ऑर्डिनेट, क्या रहेगा बेटा अपना ऑर्डिनेट रहेगा, क्या रहेगा अपना ऑर्डिनेट। क्लियर। तो ये एक अपना नया पॉइंट आ गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा अपन x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को अपन y एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस का मीन होता है एक्सिस और y एक्सिस का मीन होता है ऑर्डिनेट्स। अगर अपने पास कोई पॉइंट दे रखे हो जिसमें अपन को एक्सिस और ऑर्डिनेट्स निकालना है, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। फिर अपना नेक्स्ट दे रखा है कार्टेशियन सिस्टम। क्या दे रखा है बेटा अपना कार्टेशियन सिस्टम का मीनिंग देखो। सेकंड अपने ये तो मीनिंग मैंने बता दिया इसका कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस वगैरह क्या होता है। अब आता है बेटा अपना कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का मीनिंग क्या है कि इफ वी विल टेक हॉरिजॉन्टल लाइन एट द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, यानी आपने क्या ले रखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले रखी है, तो एक आपने क्या ले रखी है बेटा आपने वर्टिकल लाइन ले रखी है, क्या ले रखी है वर्टिकल लाइन। When the horizontal line or the vertical lines are bisect to each other, that is known as Cartesian theory। यानी आपने horizontal line और vertical line को जो आप प्लॉट कर रहे हो, जैसे आपको पता horizontal line को अपन ने क्या कहा x का था, अगर ये x तो ये क्या रहेगा बेटा अपना x डैश, ये अगर horizontal को क्या लेंगे y, अगर ये y देगा तो ये बेटा क्या रहेगा अपना y डैश, क्या रहेगा अपना y। यहाँ पे आपको वैल्यू पता है 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या रहेगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर रहेगा अपना -1 -2 -3 -4। इस पूरे सिस्टम को बेटा अपन क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अपन कार्टेशियन सिस्टम का मीनिंग होता है कि इन विच द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइंस आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस पॉइंट O इज आल्सो नोन एज ओरिजिन। इस पॉइंट को बेटा अपन क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन ओरिजिन पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, क्या होता है 0,0। क्लियर। यानी कि इसमें एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहती है 0 रहेगी, y की वैल्यू रहेगी 0 रहेगी, क्या रहेगी बेटा 0। क्लियर। अब थर्ड की बात कर रहा हूं मैं कोऑर्डिनेट थ्री। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ कि इन विच द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, द होल सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें ये सारा सिस्टम आ रहा है। अब आता है बेटा अपना क्वाड्रेंट। द कार्टेशियन सिस्टम इन हैव टू पार्ट्स में बेटा आपको 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये दिख रहा है, सेकंड ये दिख रहा है, थर्ड ये दिख रहा है, फोर्थ ये दिख रहा है। ये जो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है अपना सेकंड क्वाड्रेंट। क्या दे रखा है बेटा अपना सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या दे रखा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। क्या दे रखा है थर्ड। और ये क्या दे रखा बेटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या दे रखा बेटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है कि विच इज द पार्ट ऑफ द कार्टेशियन सिस्टम। जो कार्टेशियन सिस्टम में जो पार्ट आ रहा है ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अपने क्वाड्रेंट बोले। क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। आगे बात समझ में। तो ये जो सिस्टम जो दे रखा है इसमें जो भी अगर अपन क्वाड्रेंट्स है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए जब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर ले, व्हेन वी विल टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट इन विच द लाइन वैल्यूज आर पॉजिटिव, x value is positive and y value is positive, that means in this quadrant both values are positive। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपने कंसीडर कर रखा है तो दोनों वैल्यू बेटा में से क्या आएगी पॉजिटिव। अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर कर रखा है तो आपको पता बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो हमेशा पहला नेगेटिव आएगा x की वैल्यू और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब अपन कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर रहे हैं, जब अपन क्या ले रहे हैं x, y ले रहे हैं, तो पहले हमेशा क्या आएगा x ही आएगा। क्या आएगा बेटा हमेशा x ही आएगा। ठीक है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट ले रहा हूं तो आपको पता है ये भी वैल्यू नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव दे रहा है, x की नेगेटिव दे रखी है, ये भी नेगेटिव। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या रहेगी बेटा अपनी नेगेटिव। क्या रहेगी बेटा अपने नेगेटिव। अगर आपने फोर्थ वैल्यू ले रखी है तो यहाँ पे बेटा आपको पता है ये तो पॉजिटिव है x वाली, लेकिन ये क्या नेगेटिव, यहाँ पे आएगा ये तो पॉजिटिव और ये क्या दे रखा बेटा अपने नेगेटिव। यानी कि कहने का मीनिंग क्या हो, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वैल्यूज जो रहते हैं वो हमें से क्या लेंगे x पॉजिटिव और y नेगेटिव लेंगे अपन y नेगेटिव। इसमें दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें क्या रहेगा बेटा अपना दोनों नेगेटिव। क्या रहेंगे अपने दोनों नेगेटिव रहेंगे। क्लियर। तो ये मैंने क्वाड्रेंट्स की भी बात कर दी है। अब आ रहा है कि मान लो अपने पास कोई पॉइंट दे रखा, क्या दे रखा बेटा अपने पास में कोई पॉइंट दे रखा, उसको प्लॉट कैसे करना, क्या करना है प्लॉटिंग द फॉलोइंग पॉइंट। अगर आपको प्लॉट करने के लिए बोले तो कैसे करना है, तो देखो इसका तरीका क्या रहेगा। जैसे मान लो दो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, दो क्वेश्चन कैसे लिख रहा हूं देखो। पहले मैं लिख रहा हूं प्लॉट द पॉइंट 2, 3 -2, 4 -3, -5 और 4, -4
ऑन द नंबर लाइन ऑन द कार्टेशियन सिस्टम। कहां पे किस करना है, कार्टेशियन सिस्टम पे प्लॉट करना है, कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर। सेकंड दे रखा है डिटरमाइन द coordinate of point A, B and C। अपन को ABC के कोऑर्डिनेट्स निकालने। यहाँ पे एक फिगर दे रखा होगा बेटा अपने पास, क्या दे रखा बेटा अपने पास, एक फिगर दे रखा है यहाँ पे बेटा एक अपने पास क्या दे रखा है, फिगर दे रखा रहेगा अपने पास में। ठीक है, ये रहा एक फिगर। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये क्या दे रखा बेटा वाई डैश। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे बी पॉइंट दे रखा है, ये अपना 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से दे रखा है वैल्यू। ये दे रखा -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू दे रखी है। ये पॉइंट दे रखा, बी पॉइंट दे रखा, कौन सा दे रखा, सी मान लो यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है सी, यहाँ पे दे रखा -1, -2 और -3 इस तरह से दे रखा है। ठीक है, और इसमें आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्या करना बेटा अपन को, पॉइंट्स को प्लॉट करना है पहले तो सबसे पहले करना है, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी सी। अपन को ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है फिगर दे रखा होगा इसमें, तो अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो सबसे पहले अपन क्या चलेंगे, एक्स एक्सिस पे चलेंगे। ठीक है, फिर अपन यानी कि ये जो पॉइंट दे रखा है इसको क्या करेंगे, वर्टिकल ड्रैग कर दो, और साथ में क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा अपन, हॉरिजॉन्टल। तो ए के जो पॉइंट्स आएंगे वो कितना आएंगे, 1,2 क्या आएंगे, 1,2। यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं अपने पास, 1,2 क्या आ रहे हैं, 1, यानी जब आपको फिगर दिया हो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, तो हमेशा पहले क्या करते हैं, मूव ऑन एक्स एक्सिस एंड देन मूव ऑन वाई एक्सिस। कि पहले अपन एक्स एक्सिस चले, फिर अपन को क्या चलना, वाई एक्सिस चलना है। तो जो पॉइंट आ रहा है वही अपने क्या देंगे, पॉइंट्स आएंगे। या अदरवाइज अपन ये लिख सकते हैं, इसका दूसरा अपन ये लिख सकते हैं, ड्रैग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। कि आपने पहले इस पॉइंट को वर्टिकली ड्रॉ कर लिया और हॉरिजॉन्टली कर दिया, ड्रैग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये अपने पास ये पॉइंट आ जाएंगे। सिमिलर आपको बी के निकाल, बी का बेटा आपको पता ही चला गया है, ये बी पॉइंट दे रखा है, तो ये रहा बी, मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर डैश 3, और ये रहा मैंने वहां से यहाँ क्या बना दिया अपना, वहां से 4। तो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास में, बी के कोऑर्डिनेट्स कितना आ रहा है अपने पास में, 3,4। ये दिख रहा है आपको, ड्रैग किया मैंने, या आप 14 से चल सकते हो। तो यार अपने कितना है, 3,4। फिर एक पॉइंट अपना सी यहाँ दे रखा है, तो सी के लिए वही वापस ड्रैग करो, पहले हॉरिजॉन्टल कर दो, ये लो, और इसको भी ड्रैग कर दो। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट कितना आ रहे हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है -3, और ये कितना आ रहा है बेटा -3। तो सी की जो वैल्यू है कितनी आ रही है बेटा अपने पास में, -3 आ रहा है, और कितना आ रहा है, -3। तो ये तो पहले क्या हुआ, जो अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया। अगर आपके पास फिगर दे रखा हो तो अपन पॉइंट्स निकालेंगे ड्रैग करके। दूसरा अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, प्लॉट द पॉइंट 2,3, -2,4 एंड -3, -5, 4, -4 ऑन द कार्टेशियन सिस्टम आपको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, वापस भाई एक वर्टिकल लाइन लेनी है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करवाना पहले। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कराने के पहले आप देख लीजिए, आप तो यहाँ पे अपने ये क्या दे रखा है बेटा अपने पास एक्स एक्सिस दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे अपना क्या दे रखा है, एक्स डैश। ये अपना क्या दे रखा है बेटा अपना वाई, और ये अपना क्या दे रखा है, वाई डैश। इसको अपन मान लेंगे 0,0। क्या मान लेंगे बेटा अपन, 0,0। अब अपन को पहले यहाँ पे ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, -1। यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4 और -5। क्लियर। अब अपन को पॉइंट्स प्लॉट करना है, पहले 2,3। तो 2 तो बेटा ये रहा, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, 2,3 आपको प्लॉट करना पहले। तो 2,3 आपको ये पॉइंट आ रहा है, 2 पॉजिटिव दे रखा है, तो ये रहा पॉजिटिव, और 3 ये रहा, तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है। ये मैं मान लूंगा ए मान लूंगा, क्या दे रखा है, 2,3।
ये पहला आंसर। फिर अपन को प्लॉट करना है, दूसरा अपन को प्लॉट करना है -2,4, तो 2 माइनस का आ रहा है तो -2 या x की वैल्यू ये रही, नेगेटिव यहां आ रहा और पॉजिटिव ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू जाएंगे तो यहाँ पे कितना है, ये रहा 2, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू कितनी आ रही है -2,4, क्या आ रहा है -2, और थर्ड अपने पास में वैल्यू दे रखी है बेटा अपने पास में -3, -5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 है तो -3 ये रहा, और -5 बेटा कहां रहा, ये इसके नीचे चले जाएंगे इसके, यानी इसको ड्रैग करूंगा और इसको ड्रैग करके जो पॉइंट इंटरसेक्ट आ रहा है वाला पॉइंट, तो ये कितना आ रहा है बेटा अपना -3, -5, ये पॉइंट अपना, ये तो b है, ये b दे रखा है, ये अपना c पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फॉर लास्ट में क्या देगा 4, -5, -4 दे रखा है, इसको प्लॉट करना है 4, -4 को प्लॉट करना है, तो इसको प्लॉट करने क्या करें, ये तो 4 पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव के लिए यहां चले जाएंगे, ये रहा 11 ही वाला, इसको जब मैं मिलूंगा मैं डैश डैश करके मिलूंगा जब मैं, तो ये जो पॉइंट घटेगा यहां पर वो कितना आएगा अपना 4, -4, क्या आएगा बेटा अपना उसमें 4, -4, ठीक है। तो ये अपने जो मैंने 4 टॉपिक लिखा है लोकेटिंग द पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट्स को कैसे लोकेट करने का, कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लोकेट करने, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, और पॉइंट्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया। तो ये जो चैप्टर जो दे रखा है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। अब अपने एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन को नेक्स्ट अपन वीडियो में अपन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन इजीली कर लेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही बेटा तो डिस्कस करो, ठीक है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, मेजर पोर्शन यही है, सिंपल है, शॉर्ट चैप्टर है, आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब कैसे पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।